Hello, students, how are you? I hope you all are doing good and staying at home. Take care of your health. Stay home, stay safe. Always wash your hands at least for 20 seconds. Use face mask whenever you go out. So, today we are going to study the fourth lesson of class third. And so, let us start our studies. And the name of the lesson is A Wonderful Gift. So, this lesson is taken by James Baldwin. James Baldwin was a famous American teacher and writer. He wrote books for children and adults. He has also written textbooks for schools. Let's start story. Long ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. He loved pictures, but his parents did not buy picture books as they thought it might take his mind away from more useful things. One day, Benjamin's mother told Benjamin to take care of his baby sister when she went out. He agreed gladly. The baby was asleep in her crib. For a while, Benjamin sat very still. He did not want to make any noise and wake her. Then he thought that he could draw a pretty picture of the baby. He found a piece of cardboard and a piece of black charcoal. He began to draw. The picture grew as he drew her round head covered with pretty curls, her little mouth, her pretty eyes, her small ears, and her wonderful hands. He was so busy drawing that he did not hear his mother as he entered the room. "Oh, Benjamin, what have you been doing?" she cried. The boy sprang up, alarmed. "It's a picture of the baby, mother," he said. The woman was overjoyed at first, then she began to worry. Had Benjamin done the right thing? "Benjamin, how did you learn to draw such a lovely picture?" she asked. "I didn't learn it," he answered. "I just did it." When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. "It looks likes her, doesn't it?" she asked. "But is it wrong for Benjamin to do a such thing?" Benjamin's father did not answer. "Put it away," he said. Several weeks later, the priest of the church called on them. Benjamin's parents showed him the picture. They asked him if they should stop Benjamin from drawing pictures. The priest looked at the picture for a long time. Then he called Benjamin and put his hands on his head. "This child has a wonderful gift," he said. "Let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country." The words of the priest came true. Many years later, Benjamin West became a great and a famous painter. So, students, now I will explain this story in Hindi also. बहुत समय पहले एक लड़का जिसका नाम बेंजामिन वेस्ट था अमेरिका में रहता था। उसे चित्र बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन उसने किताबों के अलावा दूसरे कोई चित्र नहीं देखे थे। उसे चित्रों के तेज और सुंदर रंग बहुत पसंद थे। उसके माता पिता को इन चीज़ों में पैसा खर्च करना सही नहीं लगता था। उन्होंने सोचा चित्रों की वजह से उसका दिमाग अच्छी वस्तुओं से दूर हो जाएगा। एक दिन बेंजामिन की माँ को किसी काम की वजह से बाहर जाना पड़ा। उसकी माँ ने उसका घर पर रहने के घ उसकी माँ ने उसको घर पर रहने के लिए कहा और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखने को कहा, जब तक उसकी माँ वापस न आ जाए। उसे यह सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वह अपनी छोटी बहन को बहुत पसंद करता था। छोटी लड़की अपने पालने में सो रही थी। कुछ देर के लिए तो वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक मक्खी गुड़िया के गाल पर आके बैठी तो उसने उड़ा दी। तभी उसने सोचा कि वह एक अच्छा चित्र अपनी बहन की बना सकता है। उसका प्यारा सा चेहरा और छोटे छोटे हाथों को। उसके पास कोई कागज़ नहीं था तो उसे एक कार्डबोर्ड मिल गया। कार्डबोर्ड यानी गत्ता। उसके पास कोई पेंसिल भी नहीं थी तो उसने एक कोयले का टुकड़ा उसे मिल गया। उसने चित्र बनाना शुरू कर दिया। गुड़िया नींद में हंस रही थी, लेकिन उसकी नींद नहीं जगी।
चित्र सुंदर बनता जा रहा था। उसका गोल सर घुंघराले बालों से ढका हुआ था। उसने मुंह, छोटी गोल आंखें, छोटे कान बनाए थे। घर में बहुत शांति थी। बेंजामिन चित्र बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसकी माँ कब आ गई। उस उसे माँ की आने की खबर ही नहीं लगी। माँ ने कहा, बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो? वह लड़का डर के मारे खड़ा हो गया। उसने कहा, माँ यह तो सिर्फ चित्र है। उसकी माँ इतनी खुश हुई कि उसने बेंजामिन को गले लगाया। लेकिन अचानक वह चिंतित हो गई। क्या बेंजामिन ने सही काम किया है? उसकी माँ ने पूछा, तुमने इतना सुंदर चित्र कहाँ से बनाना सीखा? तो बेंजामिन ने कहा, मैंने कहीं नहीं सीखा, अपने आप कर लिया। जब बेंजामिन के पिता घर आए तो उसकी माँ ने वह चित्र उनको बताया और कहा, यह चित्र बिल्कुल गुड़िया जैसा लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्या सोचना चाहिए। बेंजामिन के पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस चित्र को ध्यान से देखा, फिर उसकी माँ को दे दिया और कहा, रख दो। कुछ हफ्तों के बाद पादरी चर्च के पुजारी ने बेंजामिन और उसके माता पिता को बुलाया। वह पादरी बुद्धिमान थे और बहुत सम्मानीय भी थे। बेंजामिन के माता पिता ने वह चित्र पादरी को दिखाया। उन्होंने बताया कि बेंजामिन कैसे हमेशा कुछ न कुछ चित्र बनाने की कोशिश करता है। पादरी ने उस चित्र को देखा और बेंजामिन को बुलाकर उसके सर पर हाथ रखा और कहा कि इस बच्चे में तो बहुत अच्छा तोहफा है, वंडरफुल गिफ्ट है। क्यों हम इसे इसके बचपन पसंद काम करने से इसे रोकते हैं? आशा करते हैं कि बेंजामिन देश का सम्मान बनेगा। और फिर पादरी की बात सच हो गई। बहुत वर्ष बाद बेंजामिन बहुत महान पेंटर बन गया और उसके चित्र बहुत प्रसिद्ध हो गए। सो स्टूडेंट्स, लिसन दिस वीडियो at least for 2 times for your proper understanding. Okay, goodbye.